Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we have discussed the vector product or cross product of two vectors. Torque is the practical application of cross product of two vectors. So come to torque or moment of force. Torque can be also called moment of force. What a torque is? Torque is the turning effect about a point or an axis that produces angular acceleration. Torque turning effect है that produces angular acceleration in a body. Like linear force is producing linear acceleration in a body, torque is analogous to the linear force. In the linear force, F is equal to ma, that is inertial mass or linear mass, linear inertia. M is linear inertia and A is linear acceleration. In analogy to that, here torque is equal to I alpha, where I is moment of inertia. We will study it in detail in rotational dynamics. Alpha is the angular acceleration. Like F is equal to ma, instead of m, here it is I, that is rotational inertia or moment of inertia. Instead of a, here it is alpha. Alpha is rotational acceleration, meaning that time rate of change of angular velocity is called rotational acceleration, या इसको हम क्या एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में. सो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट अबाउट अ पॉइंट. For example, this is a point, you see this is a point. If I am applying a force, so it is rotating about that point, that is called turning effect. In your home, you see, you are opening doors, you are opening nuts of the tires and anything else, generators, that is what we call a torque. So torque is the turning effect with the condition that it will produce angular acceleration. Simply I can say, when the fan starts, when the fan is just to start on, it start rotating and its rotational motion increases slowly and gradually with the passage of time. So angular acceleration is changing, torque is there. When the fan attains a terminal speed, meaning that the highest rotational speed, then after that there is no change in angular velocity with time. So in this case there will be no torque. What I want to convey, देखो जब फैन स्टार्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है वक्त के साथ साथ, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन तब होगी जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगी. अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी. तो टार्क तब होगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, टार्क नहीं होगा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो. अगर फैन रोटेट कर रहा है लेकिन अब एक हाई प्री डिटर्मिंड स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अभी रोटेट कर रहे हैं, तो अल्फा ज़ीरो होगी, फिर टार्क नहीं होगी. इब्तिदा में जब आपने पंखे को स्टार्ट किया तो तेज़ होता जाता है, तेज़ होता जाता है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, तो टार्क है. लेकिन जब एक प्री डिटर्मिंड स्पीड अटेन कर लेता है, हाईएस्ट स्पीड अटेन कर लेता है, जिससे ये रोटेट करता है, तो फिर अल्फा क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और टार्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो टार्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट अबाउट अ पॉइंट आर एक्सिस. ये अगर एक्सिस है, इस पर अगर कोई रोटेट कर रहा है, ये देखो ये टर्निंग इफेक्ट है, ये एक्सिस है. अगर कोई पॉइंट है उस पर रोटेट कर रहा है तो ये एक्सिस है. ये देखो मेरा एंकल है, ये मैं अगर ले लूँ पॉइंट तो उस पर यू रोटेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड टार्क. सो दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर चेंज विद द टाइम. तो ये क्या कहलाएगा, टार्क कहलाएगा. एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का लफ्ज़ ज़रूरी है. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो टार्क नहीं होगा. वेयर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration of rotating body.
मैंने क्या कहा, इट इज़ एनालोगस टू द लीनियर फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, जिसमें F लीनियर फोर्स था, M जो है लीनियर इनर्शिया या लीनियर मास कहलाता है, और A लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो टार्क है वो रोटेशनल फोर्स है, और ये जो है टा से रिप्रेजेंट होता है, I जो है वो रोटेशनल इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो उसमें एनालॉजी है, लीनियर और रोटेशनल मोशन में एनालॉजी कैसे, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। सो हमने ये कह दिया, ये जो 5वां चैप्टर है कि छठा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे टार्क इज़ रोटेशनल इन अलाग ऑफ लीनियर फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, ये रोटेशनल अलाग है। दूसरा डिफिनीशन टार्क का, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड इफेक्टिव फोर्स अबाउट अ पॉइंट आर इन एक्सिस इज कॉल्ड टार्क। टार्क जो है ये क्या है, मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर फ्रॉम the point through which the body is rotated. From the point, it is the distance between the pivot point and the point of application of force, and that component of force which is perpendicular to it, So R position from the pivot point of a force where it is applied, if is linear force. So torque is equal to R cross F. So the cross product of R cross F is called torque. और ये भी आप कह सकते हैं, the product of magnitude of either of the couple forces and couple arm is called torque. देखो couple क्या होते हैं, two equal opposite forces, two equal anti-parallel, couple is two equal anti-parallel non-collinear forces that produces rotation but no linear motion is called a couple. फर्ज करे कोई मुझे एक हाथ से यूँ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, और दूसरा मुझे पीछे की जानिब कोई खींच रहा है, तो आई विल रोटेट, दैट इज कपल फॉर्म। स्टेयरिंग आपने गाड़ी की देखी है, आप गाड़ी की स्टेयरिंग को एक हाथ को ऊपर दूसरे को नीचे, तो स्टेयरिंग क्या करता है, रोटेट करता है। स्टेयरिंग ना ऊपर आता है ना नीचे आता है। तो कपल वो दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पैदा करता है, लीनियर मोशन पैदा नहीं करता। स्टेयरिंग को आपने देखा होगा ना ऊपर आता है ना नीचे जाता है। सो कपल इज टू इक्वल एंटी पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेज। तो आपको पहले हमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नॉन कोलिनियर फोर्सेज इसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो, सेम ना हो, दैट इज व्हाट वी कॉल नॉन कोलिनियर फोर्सेज उसको कहते हैं। सो कपल क्या है, couple to equal anti-parallel non-collinear forces that produces rotation only but no linear motion. Couple arm क्या होता है, couple arm is the perpendicular distance between the point of application of two forces. Perpendicular distance, ये देखो अगर मेरा एक हाथ कोई इधर खींच रहा है दूसरा पीछे, तो that is what we call a couple arm, that is what we call a couple arm. स्टीयरिंग पे आपका एक हाथ इधर है दूसरा इधर, आप यू कर रहे हैं, तो इन दो हाथों की एप्लीकेशन, फोर्स की एप्लीकेशन के दरमियान जो फासला है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कपल आर्म, यानी डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग जो है वो आपके पास क्या है, कपल आर्म है। क्या है, कपल आर्म है। सो टार्क जो होता है बराबर होता है कपल आर्म मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू फोर्सेज, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द टू फोर्सेज। एल जो है वो क्या है, एल वो कपल आर्म है, एफ जो है वो फोर्स है, तो उससे क्या आता है, टार्क आता है। अगर आप ज़रा फिगर में देख लो तो ये देखो, ये वाला फिगर देखो, ये एक फोर्स ऊपर है ये नीचे है, दोनों के पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, और एल इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू। ये एल जो है इसके दरमियान सेपरेशन है, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या करेगा, रोटेशन पैदा करेगा अबाउट अ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे क्या करेगा, ये रोटेशन पैदा करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो टार्क की 3 डिफिनीशंस आपको मैंने करवा दी कि टार्क जो है ये क्या है, टार्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। और दूसरा डिफिनीशन मैंने कहा, टार्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर फोर्स। टार्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर फोर्स। तीसरा हमने क्या कर दिया कि टार्क जो होता है वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ टू फोर्सेस इन कपल मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म, मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म। तो कपल की डिफिनीशन की, टू इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस, नॉन कोलिनियर एंटी पैरेलल फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन
इज कॉल्ड कपल। और कपल आर्म क्या होता है, दो फोर्सेस के दरमियान, ये देखो ये प्लस एफ है, ये माइनस एफ, इनके दरमियान जो फास्ट है इसको कपल आर्म कहते हैं। Now come to the explanation of the torque. For that, consider a particle P is acted upon by a force F at an angle theta with the direction of motion. With the direction of motion. ये देखो एक पार्टिकल P है, देखो एक पार्टिकल क्या है, P है. This is particle P. You see this is particle P, and if force is applied over here, and this is theta. This is theta. This is the position vector from here. ये देखो, you see the cursor from here, the intersection point to point P. This is the position vector. You know that the position vector here, the direction of the position vector is along that direction, और फोर्स का ये डायरेक्शन है, तो उनके दरमियान एंगल थीटा है. तो आपने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है. तो अगर आप देखें, या तो आप f को रिजॉल्व करो कंपोनेंट में, या r को रिजॉल्व करो कंपोनेंट में, यानी f को इधर पीछे ले आओ तो r को रिजॉल्व करो. तो देखो हमने क्या कर दिया, f को रिजॉल्व किया, एक हो गया fx और एक है fy. fx जो है वो r का पैरेलल कंपोनेंट है, और fy जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. तो r और fx चूँकि पैरेलल हैं तो ये रोटेशन पैदा ही नहीं करेगा. सो नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड through the x component of force because r and fx are parallel. तो उससे अगर कोई मोशन होगी तो वो लीनियर मोशन होगी. हाँ, ये देखो ये fy है, अगर p पर मैं परपेंडिकुलर फोर्स इधर अप्लाई कर लूँ तो ये तब जो है ये क्या करेगा, रोटेशन पैदा करेगा. सो y कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ रोटेशन. y कंपोनेंट जो है आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है. तो देखो ये आपने देखा, आपने OP इज इक्वल टू R इज़ द पोजीशन वेक्टर, R मोमेंट आर्म जिसको कहते हैं. मोमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फर्स्ट करिए ये पिवट पॉइंट है, ये देखो ये पिवट पॉइंट है, और मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया. तो ये पिवट पॉइंट से लेकर इधर तक ये क्या कहलाएगा, ये मोमेंट आर्म कहलाएगा. अगर मैंने फोर्स इधर अप्लाई किया तो ये मोमेंट आर्म कहलाएगा. क्या कहलाएगा, ये, ठीक है ना. अगर मैं फोर्स को यू अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, यू अप्लाई करता हूँ, तो ये वाला आपके पास क्या हो गया, ये वाला आपके पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म हो गया. सो मोमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स. ये देखिए ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द लाइन passes through the pivot point. ये है आपके पास. सो अब देखो, मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पिवट पॉइंट O और एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो है वो राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं कि टार्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा. वी आर कमिंग टू दैट वन, वी हैव डन ऑलरेडी इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर. सो अब हम आते हैं कि ये हमने क्या कर दिया कि fx के थ्रू तो कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी, जिस तरह मैंने अभी डायग्राम में बताया. नो टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx एज इट इज़ पैरेलल टू r. चूँकि r है और ये fx है तो लीनियर मोशन पैदा करेगा. क्या पैदा करेगा, अगर ये r है और ये f है तो ये लीनियर मोशन पैदा करेगा. तो fx के थ्रू कोई रोटेशन नहीं होगी. हाँ, जो fy कंपोनेंट है वो क्या करेगा, रोटेशन उसके थ्रू पैदा होगी. तो टार क्या आ जाएगा, टा r fy आ जाएगा, या ryf. अगर मैं r को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, rx और ry, तो rx और f पैरेलल हैं. तो rx और f जो पैरेलल हैं तो वो लीनियर मोशन पैदा करेगा, वो रोटेशनल पैदा नहीं करेगा. ry परपेंडिकुलर है f का, तो ये आपके पास क्या पैदा करेगा, वो ये जो है पैदा करेगा, रोटेशन पैदा करेगा. सो टार्क हेयर इज़ rf sin थीटा n. जिस तरह आपने किया था f1 क्रॉस f2, तो f1 f2 sin थीटा n था. तो सिमिलर वही चीज़ें वहाँ पर, यहाँ वहाँ पर f1 हमने लिया था और दूसरा f2, तो यहाँ पर f1 की जगह r है, f2 की जगह f है, और बाकी चीज़ें वही हैं. सो rf sin थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एंड n इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड f बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है. अब देखो, अगर ये R है और F फोर्स इस तरह आप अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया. हाँ, तो अब टार्क किस तरह होगा, ये R का डायरेक्शन ये है, R ये है, R ये है, F ये है. तो ये देखो
आर का डायरेक्शन ये, एफ का डायरेक्शन ये, तो आर क्रॉस एफ राइट हैंड रूल, टार्क विल बी डायरेक्टेड अप, टार्क विल बी डायरेक्टेड अप। मैंने फोर्स, अगर मैं फोर्स को उल्टा यू अप्लाई करूं, यू तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, आर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो आर क्रॉस एफ है टार्क, ये बाय कन्वेंशन आर क्रॉस एफ है, ताकि सारी दुनिया में ये आर क्रॉस एफ है। ये क्या है, आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर क्या था, जब मैंने फोर्स यू लगाया था, फोर्स यू लगाया था, ये आर था, तो आर का डायरेक्शन ये हो गया, एफ का डायरेक्शन ये हो गया, तो आर क्रॉस एफ है। हम क्या करेंगे, आर का डायरेक्शन ये और एफ ये, तो आर क्रॉस एफ ये हो गया, राइट हैंड रूल मैंने अप्लाई किया। अब अगर मैं फोर्स को उल्टा यू अप्लाई करता हूँ, यू अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स यू हो जाएगा और आर यू हो जाएगा, तो देखो आर क्रॉस एफ क्या होगा, वो डाउनवर्ड आएगा। क्या आएगा, आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड आएगा। सो वही चीज़ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ द वेक्टर चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है, चेंज हो जाता है। वही चीज़ है, कुछ तब्दीली उसमें नहीं है, ये सिर्फ टार्क है, वहाँ पर जनरली हमने उसको डिस्कस किया था। तो इन जो है वो यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैंने दिखा दिया, जिस तरह के मैंने आपको शो करके दिखा दिया हाथ से कि ये इस तरह होता है। सो इसके लिए अब हम आते हैं स्पेशल केसेस की तरफ आते हैं कि स्पेशल केसेस मैक्सिमम टार्क कब पैदा होगा। मैक्सिमम टार्क आपने वही पाया, जो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल दो वेक्टर के दरमियान 90 होगी। अगर आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर है, देखो 10 न्यूटन का फोर्स दरवाजे पे 90 पे अप्लाई करो, 10 न्यूटन का फोर्स दरवाजे पे 60 पे अप्लाई करो, आर को सेम रखो, आर को ना चेंज करो, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जब दरवाज़ा टर्न करेगा वो 90 पे टर्न करेगा, ज़्यादा जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, रोटेशन एंगल उसकी ज़्यादा होगी। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो अगर आपका पंखा कड़ा है, आपने थोड़ा सा उसको पुश कर दिया, 90 पे पुश कर दिया, तो 90 पे आप देखो फोर्स आपने अप्लाई की, अब 60 पे वही फोर्स अप्लाई करो, आर को चेंज ना करो, बाकी चीज़ को आपने कांस्टेंट रखना होता है। फिर यानी जब आप एंगल के साथ लेते हो तो आपने आर और एफ को कांस्टेंट रखना है और एंगल को चेंज करना है। तो 90 पे ज़्यादा रोटेट करेगा, 30 पे उससे कम, 60 पे उससे कम। तो ये है टार्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब दो आर और एफ के दरमियान एंगल 90 हो। दरवाजे पे अगर एग्जैक्टली 90 पे आप फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा ज़्यादा रोटेट करेगा। सो टार्क इज इक्वल टू एफ, तो आर एफ एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर एफ आ जाएगा। मिनिमम आर जीरो रिजल्ट क्या होगा, आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब एक पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, और दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, तो फिर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आपको मैग्नीट्यूड ज़ीरो देगा। सो नो टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ आर इज पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू एफ। ये देखो, ये पिवट पॉइंट है, ये क्या है, ये पिवट पॉइंट, ये आर है। अगर मैं फोर्स यू लगाता हूँ तो ये फोर्स पैरेलल हो गया है। देखो ये रोटेशन पैदा नहीं करता, लीनियर मोशन पैदा कर सकता है, रोटेशन पैदा नहीं करता। या मैं फोर्स को उल्टा लगाता हूँ, ये देखो ये उल्टा लगा रहा हूँ, उल्टा यू लगा रहा हूँ, तो आर ये हो गया और एफ ये हो गया, तो एंटी पैरेलल हो गया, फिर भी आप देखिए रोटेशन पैदा नहीं हो रही। दरवाजे का जो टॉप है, अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो रोटेट नहीं करेगा, और अगर हिंजेस की तरफ खींच रहे हैं या एक्सिस की तरफ उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो रोटेट नहीं करेगी। तो इसका मतलब कि नो टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ आर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एफ। तो ये देखो आर एफ साइन 0 एन, आर एफ तो इससे नल वेक्टर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। सो टार्क विल बी, मैक्सिमम टार्क विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री, मिनिमम टार्क और 0 टार्क विल बी प्रोड्यूस्ड if the angle between the two vectors r and f is either 0 or 180 degree, r 180 degree। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है या रेस्ट में है तो उसमें कोई टार्क नहीं होगी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन आती है चेंज इन वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज आती है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर में आती है तो चूंकि टार्क एंगुलर के साथ रिलेटेड है, तो ये देखो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अगर होगी तो डिल ओमेगा या डिल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया और टार्क क्या होगा, 0 हो गया। अब इंटरमीडिएट रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि टार्क विल लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ़ द एंगल इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। बिकॉज हमने ये पढ़ाया था आपको पहले कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो एंगल लिमिटेशन है वो 0 डिग्री से लेकर 180 तक है। तो इस पे इंटरमीडिएट मैक्सिमम 90 पे मिलेगा, मिनिमम
0 डिग्री पे या 180 पे मिलेगा, और बाकी एंगल पे मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो है रिज़ल्ट क्या करेगा, लाई करेगा। मैक्सिमम 90 पे, मिनिमम 0 पे, बाकी पे इन बिटवीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। Now we are going to discuss the factor upon which torque depends. Factors affecting the torque. What are the parameters that affect the torque? कौन सी parameters है जिससे torque जो है वो affect होता है, change हो जाता है? Number 1, applied force. Torque is directly proportional to applied force. अगर R constant हो और थीटा कांस्टेंट हो तब देखो, ये अगर आप देख रहे हैं ये पिवट पॉइंट है, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इधर 3 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ तो थोड़ा रोटेशन हो गया, 20 अप्लाई कर रहा हूँ तो ज़्यादा रोटेशन हो गया, 30 अप्लाई करता हूँ तो उससे ज़्यादा रोटेशन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आर और थीटा कांस्टेंट हो तो तब जो है टार्क और फोर्स के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और उसका प्लॉट ड्रा कर ले तो दैट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या है, मोमेंट आर्म, जिसको हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं या पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। सो टार्क इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द मोमेंट आर्म। देखो, मैं आपको घर में आपने दरवाजे पे हिंजेस देखे हैं, हिंजेस नज़दीक होते हैं या दूर होते हैं? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि हिंजेस तो बिल्कुल दरवाजे के एंड पे होते हैं। वजह क्या होती है, ये मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो दरवाज़ा आसानी से खुलेगा, आसानी से उसमें टार्क प्रोड्यूस होगी। तो इंसान हमेशा अपनी ईजीनेस के लिए सब कुछ करता है। तो देखो, अगर ये पिवट पॉइंट है, फोर्स वही है, एंगल वही है, फोर्स वही है, एंगल वही है। अब आर को चेंज कर, मैं इधर फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन, तो ये देखो थोड़ा रोटेट करेगा, इधर लगाता हूँ तो ज़्यादा रोटेट करेगा, इधर लगाता हूँ तो और भी ज़्यादा रोटेट करेगा। इसीलिए तो दरवाजे के हिंजेस जो हैं वो बिल्कुल एंड पे लगे होते हैं ताकि उसको आसानी से खोला जा सके और आसानी से बंद किया जा सके। तीसरा क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू। सो मोमेंट ऑफ फोर्स वेरीज डायरेक्टली विद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मीनिंग दैट साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 पे मैक्सिमम है। तो अगर एंगल बिटवीन आर एंड एफ 90 होगी तो सबसे मैक्सिमम रोटेशन पैदा होगी। ये है आपको एग्जाम्पल ऑफ टार्क। अगर आप देख लें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स, विंडो अबाउट इट्स हिंजेस या एक्सिस ऑफ रोटेशन, द ओपनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ व्हील नट्स by spanner, and many others examples are there with you people, like you are dancing with the varying angular velocity, that is also torque. So torque is the twist, torque is the rotation in which there is acceleration, angular acceleration, meaning that rotation with angular acceleration is termed is torque. SI unit of torque, the SI unit of torque is Newton meter, because ta is equal to r, f similar to work, लेकिन उसको हम जोल नहीं कहते, so that we can discriminate it from that। जोल वो लीनियर उसके लिए अप्लाई होता है, लेकिन जो रोटेशनल उसके लिए है बाय कन्वेंशन ये है। तो डायमेंशन ऑफ टार्क आते हैं आपके पास ml² T⁻², ml² T⁻²। नेचर ऑफ टार्क, टार्क इज़ अ सीडो वेक्टर। सीडो वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से या लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करते हैं, तो उसको हम सीडो वेक्टर कहते हैं। सीडो कहते हैं मुहफ़्फ़फ़, सीडो कहते हैं छुपी हुई को, जो दिखाई नहीं देता लेकिन रूल्स के तहत आपके पास आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सीडो। तो टार्क जो है वो एक सीडो वेक्टर है और उसका डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से, और जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में हम कर चुके हैं, जिस तरह अभी हमने ऊपर किया। कन्वेंशंस अबाउट टार्क, हाँ जी, कौन कौन से कन्वेंशन रिवायात को कहते हैं, ये कोई एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थिंग्स होती है। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क या काउंटर क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज टार्क है तो वो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव, रिवायती तौर पर इसको क्या किया जाता है, नेगेटिव। इसलिए हमने कहा था कि आर क्रॉस एफ अगर ये है तो एफ क्रॉस आर क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ द वेक्टर रिवर्स करने से चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल टार्क। इसको हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं।
अब हम आते हैं थोड़ा सा concurrent forces, two or more forces having common point of application are called concurrent forces. दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जो कि कॉमन पॉइंट पे अमल करते हैं उसको concurrent forces कहते हैं. मैं अक्सर बच्चों के साथ जो है मजाक में कह देता हूँ कि अगर आपका कोई कान इधर से खींचे, कोई ऊपर से खींचे, कोई इधर से खींचे, लेफ़्ट से, कोई राइट से, तो चूंकि ये सारे एक कान पे अमल करते हैं सारे फोर्सेस, तो इसलिए उसको concurrent forces कहते हैं. तो जनाब आपके पास ये होता है कि अगर एक सईदुल्लाह जान को कोई आगे से पीछे खींच रहा है, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई लेफ़्ट से, कोई राइट से, कोई किसी एंगल से, तो ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सईदुल्लाह जान. सो द ऑल द फोर्सेस आर कॉल्ड concurrent forces. कोई पुल कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पे है, तो दे आर कॉल्ड concurrent forces. और ये concurrent forces जो है ये इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए concurrent forces की ज़रूरत होती है. क्या होती है? concurrent forces की ज़रूरत होती है. So the conclusion to today's lecture is that is the example of the cross product which is torque. Torque जो होता है ये क्या होता है? Torque जो होती हैं ये एंगुलर क्वांटिटी है या एंगुलर फोर्स है या रोटेशनल फोर्स है जो कि क्या पैदा करती हैं? रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा करती हैं. रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा करती हैं. अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ना हो तो टार्क नहीं होगी. अगरचे वो रोटेट कर रहे हैं लेकिन कोई टार्क नहीं होगी. सिंपल मिसाल मैंने पंखे की दे दी, वो आपको दे दी कि पंखा जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड तेज़ होता है तो टार्क है, लेकिन जब वो प्री डिटरमिन्ड मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेता है तो कोई टार्क नहीं होगा. दूसरा डिफिनीशन हमने क्या किया कि torque is the cross product of position vector or moment arm and linear force. तीसरा डिफिनीशन हमने क्या कहा कि torque जो है the product of magnitude of either force and couple multiplied by couple arm. तो couple क्या होता है? Two equal anti-parallel non-collinear forces that produces rotation only. स्टेयरिंग वाली मिसाल मैंने दे दी कि स्टेयरिंग पे हम एक फोर्स अप अप्लाई करते हैं, दूसरा डाउन, तो नॉन कोलिनियर है, दोनों के पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है. स्टेयरिंग सिर्फ रोटेट करता है लेकिन लीनियर मोशन नहीं करता. और यही चीज़ हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं. और स्टेयरिंग का डायमीटर क्या होता है? वो आपके पास बराबर होता है कपल आर्म के, जो दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. फिर हमने कहा कि टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी और ये सीडो वेक्टर है और उसका डायरेक्शन हम क्या करते हैं? राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं. फिर हमने डिपेंडेंस ऑफ टार्क के बारे में कि टार्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. फोर्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर और मोमेंट आर्म उस पे डिपेंड करता है. मैक्सिमम टार्क आपको कब मिलेगा? जब आर और एफ के दरमियान एंगल क्या हो? 90 हो. मिनिमम टार्क आपको कब मिलेगा? जब दो वेक्टर आर और एफ आपस में या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो आपको मिनिमम टार्क मिलेगा. बाकी एंगल्स जो होती हैं यानी 90 और 0 के दरमियान जो कोई एंगल होती है उस पे आपको क्या मिलेगा? उस पे आपको टार्क इन बिटवीन मिलेगा. यानी 90 से अगर थोड़ा ग्रेटर हो, टू 180 हो, तो भी आपको मतलब है कि टार्क इन बिटवीन मिलेगा. 90 पे मैक्सिमम मिलेगा. 90 से ले नीचे आके 0 तक जो है आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा. तो ये है आपके पास टार्क. टार्क जो है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है और वर्क की तरह उसका डायमेंशन mL²T⁻⁻² है. वर्क के लिए हम न्यूटन मीटर की जगह हम जूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टार्क के लिए हम क्या करते हैं? न्यूटन और मीटर को इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि दोनों क्वांटिटीज़ चूँकि उसके लिहाज से डिफरेंट है, एक रोटेशन है और एक लीनियर मोशन है, सो दैट दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर. सो हेयर देयर इज़ नो स्पेसिफिक नेम फॉर द यूनिट ऑफ टार्क एंड वी से इट इज़ न्यूटन मीटर. सो देन वी हैव डिस्कस्ड concurrent forces. concurrent forces के बारे में हमने ये इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको करेंगे. concurrent forces वो फोर्सेस होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अमल करती हैं. ये अंदर की जानिब भी होती है, बाहर की जानिब पुल भी होता है, पुश भी होता है, लेकिन एक ही पॉइंट पे अमल करती हैं, उसको concurrent forces. और उसको स्टडी करने की ज़रूरत क्या है कि concurrent forces आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द बॉडी
इन इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए कंकरेंट फोर्सेस का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने कंकरेंट फोर्सेस का जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो पहले भी हम कर चुके हैं डिफिनीशंस ऑफ मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो वेक्टर्स स्टार्ट किया था, तो आज हमने दोबारा आपको दोबारा याद दिलाया। सो दीज आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल।